Hello guys, welcome back to the channel. So let's start with the new series of UGC Net Economics important questions. The first question is, which of the following is a primary focus of Solos-Van growth model? Solos-Van growth model है जो हमारा उसका प्राइमरी फोकस क्या है? आंसर इज सी, कैपिटल accumulation. In the solo growth model, which of the following factors is considered exogenous? कौन से फैक्टर्स एक्जोजीनस हैं जो मॉडल में डेटरमाइन नहीं होते? दैट इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. अकॉर्डिंग टू एंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी, व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ? एंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी क्या कहती है कि लॉन्ग रन जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किससे होती है? आंसर इज बी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. इन द रोमर मॉडल ऑफ एंडोजीनियस ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? रोमर के मॉडल में इकोनॉमिक ग्रोथ किससे होती है? आंसर इज सी, नॉलेज एंड आइडियाज. विच मॉडल इनकॉर्पोरेट्स द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? किस मॉडल में ह्यूमन कैपिटल को एक सेंट्रल एलिमेंट है जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का माना गया है? आंसर इज सी, एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल. The Harrod-Dommer model of growth is primarily concerned with the relationship between which two economic variables? Harrod-Dommer model किस दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स से का रिलेशन दिखाता है? आंसर इज बी, सेविंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. Which growth model suggests that sustained economic growth can only be achieved through the continuous technological advancements? Answer is C, Romer model. According to Solow model, an increase in saving rate will lead to. Solow model में अगर increase हो जाए saving rate तो उससे क्या होता है? आंसर इज ए, higher steady state level of output per worker. Which model assumes that economic growth can continue indefinitely due to the accumulation of knowledge and human capital? Answer is B, endogenous growth model. Which of the following is an assumption of Harrod-Dommer model? कौन सी assumption है Harrod-Dommer model की? Answer is B, saving rate and the capital output ratio are fixed. In the Solos-Van model, the concept of diminishing returns to capital implies that. इसका क्या मतलब है? Answer is B, each additional unit of capital results in increase in output per worker. कि जैसे जैसे capital increase होती रहती है आउटपुट पर वर्कर डिक्रीज होने लगती है. अकॉर्डिंग टू रोमर्स मॉडल, विच टाइप ऑफ कैपिटल हैज़ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल? कौन सी कैपिटल की इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है? आंसर इज डी, नॉलेज कैपिटल. द स्टेडी स्टेट इन द सोलो ग्रोथ मॉडल रेफर्स टू. स्टेडी स्टेट है क्या ग्रोथ मॉडल में? आंसर इज डी, द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड कैपिटल स्टॉक. In the Lewis model of economic development, which sector is primarily responsible for initial phase of economic growth? Answer is C, industrial sector. Which growth model is known for emphasizing the role of government policy in fact fostering the economic growth through subsidies for research and development? कौन सा मॉडल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है? आंसर इज बी, एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल. The golden rule level of capital in Solow model is defined as a level of capital. Golden rule कौन सी कैपिटल को माना गया है जो हमारा सोलो मॉडल है? आंसर इज बी, मैक्सिमाइजेस कंजम्पशन पर वर्कर. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोमर मॉडल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इन नॉलेज मीन्स. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है? आंसर इज बी, a small increase in knowledge leads to proportionally larger increase in output. कि थोड़ा सा कम चेंज होने में अगर जो हमारी नॉलेज है वो जरा सी भी इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो आउटपुट है वो लार्जर अमाउंट से इंक्रीज होगी. इन द सोलो मॉडल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑन स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ आउटपुट पर वर्कर? पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट है आउटपुट पर वर्कर पर? Answer is B, it decreases the steady state level of output per worker. Which of the following is not a characteristics of neoclassical growth model? Answer is A, capital accumulation is a primary driver of growth.
In the Solow-Swan model, what effect does an increase in saving rate have a long run growth rate economy? कि जो हमारी सेविंग रेट इंक्रीज होने का क्या इम्पैक्ट है हमारा लॉन्ग रन ग्रोथ रेट पर? आंसर इज सी, इट ओनली अफेक्ट्स द लेवल ऑफ आउटपुट पर वर्कर, नॉट द ग्रोथ रेट। कि इसका ग्रोथ रेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ओनली किस पर अफेक्ट है? आउटपुट पर वर्कर पर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, नॉलेज स्पिल ओवर रेफर्स टू। कि एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल जो बात करते हैं नॉलेज स्पिल ओवर की, उसका क्या मीनिंग है? आंसर इज ए, द आइडिया दैट नॉलेज अकुमुलेशन बेनिफिट्स द फर्म एंड द सेक्टर। कि नॉलेज अगर अकुमुलेट होगी, न्यू आइडियाज जनरेट होंगे, तो उससे क्या होगा? बेनिफिट होगा फर्म्स एंड सेक्टर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ? ह्यूमन कैपिटल का रोल किसने डिटरमाइन किया, किसने एज अ सेंट्रल थीम लिया? आंसर इज ए, रोमर्स मॉडल। According to Harrod-Domar model, the main reason for economic instability is, Harrod-Domar model में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्यों होती है? आंसर इज बी, फ्लक्चुएशंस इन कैपिटल आउटपुट रेशो। इन द Solow-Swan model, what is the primary cause of convergence phenomena where poor countries grow faster than the richer one? के Solow-Swan मॉडल में कन्वर्जेंस का प्राइमरी कॉज क्या है? आंसर इज बी, डिफरेंस इन कैपिटल accumulation एंड सेविंग रेट्स. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thanks.